Hello, hi, welcome, namaskar, namaskaram, and adab. Welcome to the first episode of Eduprenio. Today we have our esteemed guest, Dr. Rajendra Patil sir. Hello, sir. Hello, Welcome to Eduprenio. thank you. So, giving a small glimpse of Dr. Rajendra Patil sir. So, उनकी लिस्ट बहुत बड़ी है. मैं थोड़ा शॉर्ट में ले लूँगा सर. आई एम सो सॉरी. So, he is a PhD in computer science and technology. He is a researcher with 5 patents. Published research journals in national and international journals, author of 6 books, corporate trainer, curriculum designer for academics and program, associated with various universities like MIT, MGM and autonomous colleges. Currently, he is a member of the planning committee at the University of Mumbai. Also, he is a member of NEP, that is National Education Policy Implementation for Science, again at University of Mumbai. He is a policy maker for various IT policies, drafted IT policies for various institutions. He is a principal at Bansang's Anna Leela College. Oof! Sir, such an exhaustive and a great career you have been having. Thank you, thank you. Sir, first question जो मैं आपको पूछना चाहूँगा. Some years before when you started your education, did you have this in mind that after maybe 10 years, 20 years, 25 years down the line, you would be having such a great career? ऐसा तो कभी सोचा नहीं था, but obvious I keep working hard, got an opportunities after giving the best of the best inputs, Correct. and as a result, today just reached to this particular level. Great, great. So, sir, अगर आज के हम जनरेशन का बात करें, so is today the youth working the same way as they should? About the youth, from last 8 to 10 years, the observation while interacting with the student is the students' willingness toward taking the hard efforts, keeping the firm vision, really it is missing a lot. हर एक स्टूडेंट को एक अच्छा एजुकेशन के साथ साथ वी ऑल्सो नीड दैट देयर शुड बी द मेंटर who can guide them at every point of their career. Correct. I am lucky that I have a mentor till date. Perfect. आज भी मुझे कोई डिसीजंस लेना होता है तो मेरे जो मेंटर्स है जिनको मैंने मेंटर्स माना है, Correct. तो उनकी सलाह लेके हम आगे बढ़ते रहे. और वही that is the message which I would like to give to the students also. I keep delivering various sessions and I keep telling the people, rather than career guidance, first of all, find a good mentor. For you, Very who will give you the proper guidance, who can talk about your weak points, who can analyze you, who can talk about your strength and what is the remedy for that weak points. Perfect. And at the same time, the student should also accept him as a mentor. Mentor. And but currently, if I see, students take mentor, but they take mentor as some of their relatives. Yes. Maybe their parents, maybe their elder brother, or maybe some relative who has done an educational qualification before them. Now that person might be good. They want to deliver good things for the kid, but they are not that capable maybe academically, or maybe they are not that capable of the exact fields that are available for students. Right. Because of this, the students are misguided somewhere. Do you think this is happening, sir? I will not say they are misguided, but as you mentioned that obvious the mentoring starts from the family. So parents, every parent, as a parent, they also have the responsibility that somewhere they also knew that yes, mentoring is required. So at a certain stage, they become a mentor. Perfect. When the child is growing, so their parentship is there. Perfect. Parenting is required. So they play the role of parents. But when the child becomes a teenager and he is quite matured, so that time mentoring is required. Coaching is required. Right. So mentoring in family, obviously it starts from the family because mentoring, they motivate you. And then reaching to the right person who will do the proper counseling. And mentoring or coaching is not the job of one day Correct. or 1 hour. Correct.
where parents take them to the counselor, and within a one day the counselor builds the career path, and as a result just like astrologist that you will be becoming this and that. Correct, correct. So that will not work actually. You should have the coach for lifetime, Right, and there will be the different levels of coaches right, as any of the player. right. Like Sachin Tendulkar, when he started the career, so initially he was having the mentoring which started from his father as well as his brother. Correct, The brother as a mentor stayed for a lifetime. correct. Then after that he was having the Achrekar sir Right, as a coach. right, Then when he reached to the different level, then he was having the different coaches. correct. So at every stage of your journey you will be requiring the coaches. It's your duty to decide You who have- your mentor would be. Right, right. And also the mentor's duty is to understand that what is their capacity to make the student understand or make the child understand. Absolutely. It should not be with an emotional, more of an emotional, but it should be like a practical outlook. Exactly. It should be there should be the practical approach only. Correct. And he should be neutral. Neutral. Nowhere any biased things are required. Right. Just psychologically to make you happy. If I am just telling you all good things, that is Right. not the mentoring. Correct. So even my mentors who are there, wherever I am wrong, they will obvious guide me, and they will tell me, yes, this is wrong. You should do in other way, or you should do that and all. And we accept it. Even today, at this stage also, you listen to your mentors. Yes, yes. So I would like to tell this to our audience. A person is successful only if he accepts that he is a learner. Am I right, sir? Yes, absolutely. Once a person thinks that I know everything, I think so, the success or the life stops over there. Yes, yes. So coming to our next question, sir. The culture that has been building now, like example, जब हम बचपन में बच्चे को स्कूल में डालते हैं, वी थिंक दैट बच्चा बहुत अच्छा स्कोर करना चाहिए. धीरे धीरे वो 90% स्कोर करना चाहिए. इट बिकम्स अ कॉम्पिटिटिव एज. सेम वे ये एक पूरा एक कॉपी पेस्ट हो जाता है जब वो कॉलेज पहुंचता है. अब ये जैसा कॉलेज पहुंचता है, इसने कुछ भी करे, इसको अच्छा जॉब मिलना चाहिए. Right. ये एक मेंटालिटी या एक कल्चरल मेंटालिटी बनते हैं, जिसे हम पूरी तरीके से गलत भी नहीं बोलते. सोसाइटी है, सोसाइटी नॉर्म्स बने हैं, अपने हद तक सही है. बट सर, क्या इसके वजह से बहुत सारे अच्छे टैलेंटेड बच्चे पीछे रहे थे? होता है. ये रीज़न से होता है. अभी इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा. देयर इज़ अ सोशल प्रेशर विच एवरी फैमिली कैरीज. मैं खाली बच्चे को दोष नहीं दूंगा, पूरी फैमिली एक सोशल प्रेशर लेके चलती है. पूरी फैमिली. करेक्ट. जो आज के डेट में जो एक हमारे लिए बड़ी समस्या बन चुकी है. जब मैं काफ़ी पेरेंट्स से मैं डील करता हूँ, जब वो एडमिशन्स लेने आते हैं, और जब हम उनके साथ डील करने के बाद एक ऑब्जेक्टिव रहता है कि भाई आप ये एजुकेशन क्यों लेना चाहते हो. इसमें और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि जब भी बच्चे या पेरेंट्स अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में सोचते हैं, तो काफ़ी पेरेंट्स का एक होता है कि मुझे एक XYZ कॉलेज में ही मेरा बेटा पढ़ना चाहिए. वो क्या पढ़ना चाहिए वो कभी उस पर आप ध्यान नहीं देते कि उसने एक IIT में ही पढ़ना चाहिए. लेकिन उसने क्या पढ़ना चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता है. राइट. तो ये कहीं ना कहीं ये एम्बिशन जो है वो एक इनकलकेट किया जाता है, और वो उस हिसाब से उसमें नर्चरिंग कर करके वो भी एक सोशल प्रेशर कैरी करता है. उसके बाद में एक बार वो IIT में एडमिशन ले ले तो पेरेंट्स को लगता है कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो चुकी है. अब ये स्यूडो सक्सेसफुल तो हो ही गया. हाँ, तो अभी ये सक्सेसफुल हो जाएगा और आगे की जर्नी उसकी स्ट्रीमल है. कुछ गलत नहीं है उनकी सोच, बराबर. लेकिन कहीं ना कहीं हम एक एजुकेटेड होके या हम इतना एक्सपीरियंस लाइफ में लेने के बाद जो हम आज के डेट में जो सोशल स्टेटस है या सोशली हम हमारे सराउंडिंग में देखते हैं, तो भाई क्या ज़रूरी है. सबसे पहले यू शुड एज ए ह्यूमन बीइंग यू शुड कैरी द गुड ह्यूमन वैल्यूज़. तो इसलिए अभी हमारे नए सिस्टम में भी वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पे जो हम स्ट्रेस देते हैं, एक मोरालिटी हो, एथिक्स हो, जस्ट लाइक मॉरल साइंस जो बचपन में सीखते थे हम, में, तो अभी वो स्टूडेंट्स को शायद ही मिलता था. शायद एक्चुअली मॉरल साइंस काफ़ी लेट होना चाहिए.
हाँ, जब वो पहले- मैच्योरिटी आ जाए समझने की। बराबर। पहले एक्चुअली वो भी एक सही था कि भाई बचपन में ही अगर मैच्योरिटी रहे और मोरालिटी कैरी करे तो आगे जरूरत नहीं पड़ेगा। Correct. लेकिन अभी सब एजुकेशन ऐसा हो चुका है कि हम जैसे ही क्लास पास हो जाते हैं तो हम वही वो क्लास में रख के आगे बढ़ते हैं, बस क्योंकि डिसरप्शंस इतने आ चुके हैं नई जनरेशन में कि वो टेक्नोलॉजी से इंगेज होके अपना काफ़ी समय, देन देर इज़ अ लॉट ऑफ वोलेटिलिटी कि आज जो मैंने कंटेंट देखा है शायद वो कल मैं भूल भी जाता हूँ कि मैंने सही Right. में ये कंटेंट देखा था क्या। Right. तो ये जो सब गैप्स आ रहे तो ये फिल होने चाहिए, और इसीलिए अभी जो नए एजुकेशन सिस्टम में बदलाव है तो ऑब्वियस वो आ रही है अभी Correct. नेशनल जो मैं एजुकेशन आ ही पॉलिसी रहा के थ्रू। था, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे मैं आने ही वाला था। तो वैल्यू बेस्ड एजुकेशन एक उसने एजुकेशन लेने के बाद जब वो एक डिग्री क्वालिफाइड हो जाता है तो क्वालिफाइड होना और एजुकेटेड होना, ये दो चीज़ों में मैं एक फ़र्क जानता हूँ, और मेरे हिसाब से वो एक फ़र्क है। बहुत बड़ी फर्क है, एक नॉलेजेबल रहना और या एक एजुकेटेड रहना, हाँ, educated एक ही बात हो गई। Yes, एंड एक सिर्फ जो डिग्री लेना जिसे बस। आप क्या कहेंगे, Qualified, बस। क्वालिफाइड बोलेंगे। बस। ओके, तो आप एक डिग्री लेके घूम रहे हो, क्वालिफाइड हो, लेकिन आप एक सिविक सेंस नहीं कैरी कर रहे हो, आप एक किसी को सोशली आप समझ नहीं पाते हो, तो मैं कहीं ना कहीं चाहूँगा कि ये हमारे एजुकेशन सिस्टम या उस बंदे में लैक ऑफ विजन है, या वो एजुकेशन की और भी कमी जो रह गई है, और वो प्रॉब्लम्स या सामने वाले सिचुएशंस नहीं समझ पा रहा है, Right. वो खाली अपने बारे में सोच रहा है, तो दैट इज़ नॉट द एजुकेशन। करेक्ट। तो ये काफ़ी जो चीज़ें वो और भी हमें आनी बाकी है। मैच्योरिटी, और मैच्योरिटी कब आती है, जो सभी को समझ सकता है, जो सुन सकता है, और जो सामने वाले को एक अच्छे थॉट या अच्छा सॉल्यूशन बता सकता है। करेक्ट। तो यही होता है एजुकेशन, करेक्ट। जिससे एक ऑरा होता है हर एक पर्सन का। और जब हम बोलते हैं, जो एक फिलॉन्थ्रोपिस्ट किसे बोलते हैं, कि जब हम उनको मिलने के बाद एक हमें एक फील होता है कि ऐसे विचार मेरे भी होने चाहिए। तो मैं चाहूँगा कि वो जिस दिन आप में आ जाए तो आप फुल्ली एजुकेटेड हो। परफेक्ट। सो दैट इज़ द एजुकेशन व्हाट आई फील। वेल सेड। लेकिन वो चीज़ आज के डेट में स्टूडेंट्स को लैकिंग होती है। एक तो ये क्वेश्चन है। सेकेंडली, हम स्टूडेंट्स या लर्नर्स को ब्लेम नहीं कर सकते। एक जो कल्चर चलते आया है, बचपन से कुछ भी पढ़ाई करो, अगर आपको समझ में नहीं आया चलेगा, आपने रट्टा मार लिया, आपने मार्क्स स्कोर कर लिया, यू आर इंटेलिजेंट। इसका मतलब हो गया कि अगर आपको स्पून फीड कुछ चीज़ की गई है, आपने उसको बिना समझे रट्टा मार लिया, एंड आपने उसको लिख लिया, मीन्स यू वॉमिटेड ऑन द पेपर, इन शॉर्ट आई वुड से, एंड आपको एक अच्छा मार्क्स मिला है, एंड आपको सोसाइटी बोल देती है कि ही इज़ इंटेलिजेंट। इसके वजह से एक इंडिविजुअल खुद को इंटेलिजेंस के एक दायरे में लेकर आ जाता है, एंड वो सामने वाले की व्यूज़ को भी नहीं समझ पाता, एक रिजिडिटी आ जाती है। राइट। क्या आपको लगता है सर ये हो रहा है? ये काफ़ी पैगामे पे हो रहा है। थोड़ा इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस बहुत अलग होता है इसमें। मैं फिर से उसे मैं बोलूँगा कि कहीं ना कहीं जो हमारे सिस्टम में जो एक गैप था कि भाई आप में एक मैच्योरिटी कैसे डेवलप हो, तो मैच्योरिटी विल बी द प्रोफेशनल मैच्योरिटी, या आपकी मैच्योरिटी एक बिहेवियरल मैच्योरिटी जो होती है, सोसाइटी, फैमिली, सोशल मैच्योरिटी जो होती है। तो आप सभी चीज़ें जब आप हैंडल कर सकते हो, सभी प्रॉब्लम्स को आप एड्रेस कर सकते हो, तो उस वक्त मैं बोलूँगा दैट पर्सन इज सक्सेसफुल। करेक्ट। आप भले ही एक अच्छे करोड़ रुपए पैकेज वाला जॉब मिल जाए और आप आपकी दुनिया में बिजी हो, एंड देर इज़ नो वेयर एनी कंट्रीब्यूशन, और या आपका किसी को फ़ायदा नहीं हो रहा है, भले ही आप रोल मॉडल हो लेकिन आप किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो। सो देन अगेन आई विल से दैट इज़ द गैप जो एजुकेशन दैट एग्जिस्ट इन योर ओवरऑल पर्सनैलिटी। तो ये तो है ही। और जो जैसे आपने पूछा कि बच्चों से जो हम उम्मीद रखते हैं अलग से, एक दूसरा ये भी होता है कि अगर बच्चों पे भी प्रेशर हो कि भाई अगर मैं डॉक्टर हूँ तो आपने भी डॉक्टर बनना ही है। राइट, राइट। तो लेकिन कहीं ना कहीं देयर शुड बी अ गुड टॉक बिटवीन द पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। दूसरी साइड भी बताऊंगा कि काफ़ी पेरेंट्स अभी ये भी लेवल पे आ चुके हैं कि दे आर क्वाइट मैच्योर्ड, करेक्ट, कि कहीं ना कहीं वो प्रेशर डालना वो कम हो चुका है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट्स
जो मैं अभी के कभी मैं बच्चों के स्कूल जाता हूँ और जब मैं पेरेंट्स से बात करता हूँ या मुझे अभी काफ़ी पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन होता है कि सर अभी बच्चों को 2 महीना छुट्टी है तो उनको कैसे इंगेज किया जाए। तो मैं चाहूँगा कि वो 2 महीने में उनको एंगेज करना है, यानी क्या, तो उन्हें एक डर है, वो भी उनकी जगह सही है कि भाई ये कोई मोबाइल या यूट्यूब कोई गलत वो संगत engage- में या या ऐसा उधर। कुछ हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे वो चाहूँगा कि उसने थोड़ा नेचर में मिक्स होना चाहिए, Correct. उसने नेचर जानना चाहिए, उसने थोड़ा सोशली आउटरीच करना चाहिए, जो सोशल प्रॉब्लम्स जानने चाहिए। करेक्ट। उसमें अगर वो ये बदलाव लाएंगे, लेकिन ये पेरेंट्स आज भी एक्सेप्ट नहीं करते। लेकिन कहीं ना कहीं मैं चाहूँगा कि इसके लिए थोड़ा समय देना चाहिए। करेक्ट। पहले टेक्नोलॉजी नहीं थी, इसलिए हमारी जो जनरेशन थी, जो हम सोशली घूमते थे, हम सोशली प्रॉब्लम्स जानते थे और वो समझते थे, भले हम सॉल्व नहीं कर पाते थे लेकिन प्रॉब्लम समझ पाते थे। तो ये अभी काफ़ी मिसिंग हो रहा है। और कहीं ना कहीं फिर कोई सोशल प्रॉब्लम बताने के लिए एक यूट्यूब बनाया जाता है और फिर उस पर हमारी कमेंट्स दी जाती है। तो अभी ये सब ऐसा लगता है कि हाँ मैंने वहाँ पे कमेंट दे दिया तो मैं सोसाइटी के लिए कुछ हाँ, और आर्टिफिशियल, तो ये सब आर्टिफिशियल चीज़ है। लेकिन मैं चाहूँगा, ये युवा पीढ़ी को ये मैसेज दूंगा और पेरेंट्स को भी दूंगा कि भाई आपके बच्चों को 1 से 1.5 महीना एक उसको नेचर जानने दो, उसको थोड़ा बाहर घूमने दो, सोशली उसको कनेक्ट होने दो, उसको दुनिया देखने दो। करेक्ट। तो ये इससे बड़ा और सर्टिफिकेट कोर्स नहीं हो सकता है। परफेक्ट, वेल ऑब्वियस दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स होता है, यानी जो बाकी जो स्किल ओरिएंटेड है, तो वो अपने आप जानने लगेगा कि भाई मेरी लाइफ में मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है और मेरी भी एज अ सिटीजन या सिविलियन मेरी क्या जिम्मेदारी है। करेक्ट। तो जब वो अपनी जिम्मेदारियां जान लेगा तो डेफिनेटली एक बड़ा बदलाव हमारे इस देश में आ सकता है। वेल सेड सर। मीन्स बेसिकली आप कितना भी डिग्रीज ले लीजिए, कितने भी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोर्सेज ले लीजिए, जब तक आप एक वेल डिफाइंड कैरेक्टर, एक बढ़िया पर्सनालिटी जिसमें एम्पैथी हो, जब तक आप ऐसे नहीं बनते तब तक सक्सेस अगर आपको आती भी है तो वो एक्चुअल आपके लिए सक्सेस होगी, पर वो एक्चुअल सेंस में नहीं है। एंड सर मैक्सिमम लोगों को सक्सेस पैसे के टर्म में लगती है। वो अभी सोच है अपनी। हाँ, अभी हो सकता है सक्सेस वेयर यू फाइंड सेटिस्फाइड। करेक्ट। आपकी हर एक सुबह जो है आप काम करने जाते हो तो आप हंसी खुशी काम करने जाते हो, जाने का मन होता है, आने का मन नहीं होता है, वो बोलूँगा मैं प्रोफेशनल सक्सेस। लाइफ वाली सक्सेस अलग होती है। राइट। आप फैमिली में आप कितना बैलेंस कर पाते हो। तो अभी ऑब्वियस ये भी एक नया कल्चर हमें सीखना है, वर्क लाइफ बैलेंस। क्योंकि हमारा वर्क कल्चर जो है, जिधर हम लाइफ के बारे में ना कोई ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं कि आपकी लाइफ कैसे होनी चाहिए। कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिधर अच्छा कल्चर भी होता है कि भाई आपके प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ आपकी फैमिली लाइफ भी बैलेंस हो। राइट। तो ये भी कुछ अभी ये तो सिस्टम का पार्ट है। और फाइनली आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि मैंने कहाँ तक रुकना चाहिए। करेक्ट। और कहाँ तक, यानी मैंने स्ट्रगल करना चाहिए या मेरी जर्नी कहाँ तक होनी चाहिए। तो जिस दिन हर एक जन एक अपना अपना लेवल जान लेगा और जब सभी चीज़ों में आप खुश रहते हो और आप जब आपके इनपुट्स पैशनेटली दे पाते हो या पैशनेटली आप काम करते हो, तो उसको मैं सक्सेस मानता हूँ। लेकिन सबकी सक्सेस की डेफिनेशन अलग अलग होती है। हाँ। तो एक लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ सर मैं। सक्सेस की डेफिनेशन अलग होती है लेकिन फेलियर की डेफिनेशन तो एक ही होती है सबके दिमाग में। मुझे ये बताइए कि हम बचपन से स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को कॉलेज के डेज में भी सक्सेसफुल कैसे होना है उसके लिए ट्रेन करते हैं, पर लाइफ हमेशा हमें सक्सेसफुल नहीं मिलती। वो कभी ना कभी हमें झटका देती है, फेलियर्स महसूस कराती है। हम इसके लिए कैसे प्रिपेयर करें? एक काफ़ी अच्छा सवाल है आपका कि फेलियर के बारे में बहुत कम बोला जाता है, लेकिन फेलियर होने के बाद सॉल्यूशंस पे कोई बात नहीं करता है। राइट। और अगर बात करेंगे तो पूरा सब लोग बात करने लगेंगे। तो फेलियर सबसे पहले ये एक पार्ट ऑफ एजुकेशन है जो सभी ने ये सिखाना ज़रूरी है। हाउ टू रन फॉर सक्सेस ये पढ़ाया जाता है, बट हाउ टू फेस द फेलियर। एग्जैक्टली। तो मेरा ये कहना है कि फेलियर इज़ वन ऑफ द स्टेप टू बिकम अ सक्सेसफुल। परफेक्ट। और हर एक बंदे ने एक बार तो भी लाइफ में फेल होना चाहिए। यस, उसका एक टेस्ट लेना चाहिए कभी ना कभी। अगर आप फेल नहीं होगे
तो आप फिर जब सक्सेसफुल होने के बाद जब फेलियर फेस करोगे तो उस दिन आपके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे। नहीं होंगे। तो फेलियर आप लाइफ में जितने जल्दी फेस कर रहे हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम तो फेलियर ना हो इसके लिए भी काम करना, ये भी एक बड़ा करेक्ट, एक ट्रिकी पार्ट है। कोई भी फेलियर होने के strategy लिए होती है। तैयारी नहीं करता, सक्सेस के लिए ही करता है। लेकिन अगर इन द वे फेलियर मिला तो उसे एज अ लर्निंग लेसन लेकर उसे आगे बढ़ना चाहिए। एग्जैक्टली, ये एक पार्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। जब हम ये वैल्यू बेस्ड एजुकेशन पढ़ाते हैं तो उसमें ये एक कहीं ना कहीं काइंड ऑफ मॉड्यूल पे फोकस करना चाहिए कि जब फेलियर होता है हाउ टू फेस द फेलियर या हाउ टू फेस द क्राइसिस। तो क्राइसिस लाइफ में भी होती है, वर्क प्लेस पे भी होती है। तो प्रोफेशनली क्राइसिस मैनेज करना तो ये पढ़ाया जाता है ट्रेनिंग सेशंस में, लेकिन लाइफ में क्राइसिस होती है तो इसको कैसे डील किया जाए। तो और इस प्रॉब्लम से लाइफ में कोई नहीं छूटता है तो कोई भी बड़ा छोटा, तो लेकिन इसको फेस कैसा करना चाहिए ये समझा तो ये भी एक पार्ट ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। क्राइसिस होता है, ऑब्वियस इट एग्जिस्ट, जो चीज़ें एग्जिस्ट होती है तो हर एक चीज़ का जानना और हर एक चीज़ का अनुभव लेना, राइट। तो यही एक एजुकेशन है। एजुकेशन प्रोसेस है। मैंने कहा लास्ट क्वेश्चन, लेकिन प्लीज़ आपके बात से मैं काफ़ी मोटिवेट हुआ और एक फाइनल लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा सर। हर किसी को आज के डेट में एक कल्चर बन गया है कि जहाँ पर उनको किसी के लिए काम नहीं करना है। एवरीवन वांट्स टू वर्क फॉर देमसेल्व्स, आइदर फ्रीलांसिंग या उनको कोई बिजनेस सेटअप करना है या एंटरप्रेन्योरशिप करना है। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मीन्स क्या हम उस कल्चर में जाकर क्या वो सक्सेसफुल कल्चर हम क्रिएट कर पाएंगे या ये सिर्फ एक बबल है? ये इसमें देखो एक अलग अलग परसेप्शंस है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि अगर हम नेशनल हमारी कंट्री को डेवलपिंग कंट्री करके उसको लाना चाहते हैं या जो हम प्रोजेक्ट करना चाहते हैं या डेवलपिंग से डेवलप्ड के तरफ हम लेके जाना चाहते हैं, तो ये चीज़ों के लिए ऑब्वियस एंटरप्रेन्योरशिप का एक थॉट जो स्कूल्स में या जितने अर्ली स्टेज में बताया जाएगा वो काफ़ी अच्छा है। हम अभी ये जो एजुकेशन है, स्टार्टअप्स या एंटरप्रेन्योरशिप एक डिग्री लेवल पे ला रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने तो भी एंटरप्रेन्योर्स है जो अपना एजुकेशन काफ़ी कम एज में छोड़ के और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन चुके हैं या एंटरप्रेन्योर्स बन चुके हैं। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं स्कूल लेवल के एजुकेशन में भी अगर ये एंटरप्रेन्योरशिप या इनोवेशंस इस चीज़ों के बारे में अगर हम ये बदलाव ला सकते तो और भी देश के लिए हमें अच्छे नए एंटरप्रेन्योर्स मिल सकते हैं। तो बेसिकली एंटरप्रेन्योरशिप सिर्फ एक बिजनेस नहीं होगा, वो एक माइंडसेट हो सकता है, सोच है मेरे हिसाब से, एक सोच है एंटरप्रेन्योरशिप, सोच है जो कोई भी एम्प्लॉय में भी आ सकती है, जॉब वाले है ना, ही कैन बी फ्री टू वर्क व्हाटएवर। एंटरप्रेन्योरशिप समथिंग तो जो एक क्रिएटिव माइंड लेके चलता है। और एंटरप्रेन्योरशिप ये थॉट कब आता है जब वो पैशन से जीना शुरू करता है। परफेक्ट। जब वो अपनी जर्नी या लाइफ में पैशनेटली रहता है तो वही एंटरप्रेन्योर बन सकता है। करेक्ट। जो अपनी एक लाइफ अगर सेफ मोड में या सेफ हैंड्स में चलेगा तो वो 9 to 5 सर्विस वाला ही सोच रखेगा। तो ऐसे भी काफ़ी लोग होते हैं जिनमें कैलिबर होता है लेकिन वो सेफ जोन से निकलना नहीं चाहते। करेक्ट। लेकिन ये लोगों ने अगर ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन लाया लाइफ में तो वो और भी कितने तो भी लोगों के लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं। परफेक्ट। मैं डॉक्टर बताऊंगा कि भाई अगर वो डॉक्टर रहते सपोज उनमें काफ़ी हुनर है लेकिन वो दूसरों के हॉस्पिटल में जाके काम करते, लेकिन वो अगर खुद एक नई सोच दे के काफ़ी हेल्थ केयर इंडस्ट्री में बदलाव ला सकते हैं तो एक बड़ा वो बदलाव लाके बाद में नए इनोवेशन, तो इसका बेनिफिट काफ़ी अलग डॉक्टर्स को भी मिल सकता है। साथ में इसमें रिसर्च मेंटालिटी भी बच्चों को बचपन से ही मिल सकती है। वो तो एक नर्चरिंग रहेगा। अच्छा तो वो तो ऑब्वियस वो होना ही चाहिए। राइट। रिसर्च में चाहूँगा, रिसर्च के लिए काफ़ी हमें उसके लिए स्ट्रेटजीज लानी ज़रूरी है। स्कूल लेवल पे अभी हमने रिसर्च लाया हायर एजुकेशन में, लेकिन क्या ये रिसर्च स्कूल लेवल से शुरू हो सकता है क्या? राइट। जापान में रिसेंटली जब मैंने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए मैं अटेंड किया था तो उनका एक स्कूल लेवल पे इनोवेशन प्रोग्राम है जिसमें पेटेंटिंग के बारे में उनको बचपन में ही पढ़ाया जाता है। वाओ। और उनकी एक टॉप लेवल की कंपटीशन होती है कि जो स्कूल लेवल के ही बच्चे उधर अपने पेटेंट्स उधर पब्लिश करते हैं, वेरएज हम हमारे इंडिया में अभी भी रिसर्च होने के बाद या जो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाता है
तो वो पेटेंटिंग के बातें करता है। करेक्ट। मैं खुद मेरे बारे में कि हमें ही काफ़ी लेट इन चीज़ों के बारे में मालूम पड़ा। ऑब्वियस पेटेंट के बारे में अवेयरनेस भी होना ज़रूरी है। काफ़ी चीज़ें जिसके बारे में हमें अवेयरनेस करना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें लेकिन स्कूल लेवल से ही अगर शुरू हो जाए करेक्ट, तो एक अच्छा माइंडसेट बच्चों का ग्राउंड लेवल पे ही काम हो जाएगा और धीरे धीरे वही लिंक उनको हायर एजुकेशन में मिलेगा। राइट, तो उससे इंडिया का ग्रोथ एंड सक्सेस बहुत जल्दी हम ला सकते हैं, क्योंकि हम एक यूथ नेशन है आज के डेट में, एंड आने वाले नेक्स्ट 30 to 50 ईयर्स विल रिमेन एज यूथ नेशन। अगर हमारा यूथ स्ट्रांग होगा तो नेशन स्ट्रांग होगा। सो डॉक्टर राजेंद्र पाटिल सर, थैंक्स अ लॉट फॉर योर टाइम, एंड इनके व्यूज़ सच में बहुत ही बढ़िया है। This will create, this views, if implemented in the right direction, it will certainly create a great nation. Thank you everyone for watching us. Let's meet up in the next series of Edupreneur. Subscribe to our channel, follow us, click the bell button. Thank you. Thank you, sir. Thank you.